हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि कैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर किस तरह से हर ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग के बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जर्नल करते हैं। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज व्हेन दे टेक प्लेस। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था गुड्स के बारे में। यहाँ से हम लोग लास्ट में छोड़े थे कि गुड्स क्या होता है। गुड्स को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया था? 4 पार्ट में। तो गुड्स से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब एनीथिंग इन विच ए मर्चेंट deals or anything which is purchased or sold by a merchant, that thing is called goods. For example, for a stationery merchant, stationery is called his goods. For a furniture merchant, furniture is called goods. For a cloth merchant, cloth is called goods. So anything which is purchased or sold by a merchant, that thing is called goods. Or anything which is purchased or sold by a merchant, that thing is called goods. For example, हमने देखा stationery merchant, cloth merchant, furniture merchant, etc. When a furniture merchant purchase furniture, then it is called goods. Or when a furniture merchant sold furniture, then it is called goods. But when a furniture merchant purchase stationery, then it is not called goods, it is called stationery. Similarly, if a stationery merchant purchased furniture, then it is not called goods, it is called furniture. So anything in which a merchant deals, that thing is called goods. Goods account are classified into 4 parts. Yeah, there are 4 types of goods account. First one is called purchases. Second one is called sales. Third one is called purchase return. And fourth one is called sales return. So these are the 4 parts of goods account: purchase, sales, purchase return and sales return. First, purchases. When the goods is purchased, जब गुड्स को क्या किया जाता है? परचेज किया जाता है। When the goods is purchased, it is called purchases. जब गुड्स को हम परचेज करते हैं तो गुड्स को क्या करते हैं? परचेजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, if a furniture merchant purchase furniture, then furniture is called purchases. So anything in which a merchant deals, when this thing is purchased by the merchant, this is called purchases. In the place of goods, we use the word purchases. For example, suppose purchased goods for cash रुपीस 10,000। गुड्स को हमने कितने में परचेज किया? 10,000 रुपीस में। तो गुड्स परचेज किए, इन द प्लेस ऑफ गुड्स वी यूज द वर्ड परचेजेस। मींस परचेजेस अकाउंट डेबिट रुपीस 10,000। और फ्रॉम द फोर्थ लेटर वी यूज द वर्ड टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग एज ऑब्जेक्ट, गुड्स, फिर वर्ब, परचेज और फिर जो भी कुछ है वो रिकॉर्ड कर देंगे फॉर कैश। तो दिस इज द डेबिट और क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो व्हेन द गुड्स इज परचेज्ड, इट इज कॉल्ड परचेजेस। नेक्स्ट, सेल्स। व्हेन द गुड्स इज सोल्ड बाय ए मर्चेंट, व्हेन द गुड्स इज sold by a merchant, it is called sales. और in the place of goods we use the word sales. जब goods को sold करते हैं तो goods को क्या करते हैं? sales करते हैं। और goods के place पर क्या word use करेंगे? sales word use करेंगे। For example, sold goods for cash रुपीस 9,000। गुड सोल्ड किए तो हमारे पास क्या आया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट 4th लेटर से टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग ऑब्जेक्ट क्या है?
गुड्स वर सोल्ड और फिर क्या बच गया फॉर कैश। तो व्हेन द गुड्स इज सोल्ड, जब गुड्स को सोल्ड करते हैं तो गुड्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे सेल्स। कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट। sold goods for cash, so cash comes in the business and goods goes out from the business. Cash comes in, so cash debit and goods is goes out from the business. So in the place of goods we use the word sales. When the goods is sold it is called sales, and in the place of goods we use the word sales account. And this is the transaction entry. Third, purchase return. When the goods which is purchased by a merchant, if this goods is returned by the merchant to the supplier, then this goods is called purchase return. जब purchase किया हुआ goods क्या करते हैं, supplier को return कर देते हैं, तो goods को हम लोग क्या करते हैं, purchase return करते हैं. And in the place of goods we use the word purchase return. For example, return goods to Ram. रुपीज 10,000, मतलब गुड्स राम को रिटर्न किए। रिटर्न किए मतलब कौन सा गुड्स रिटर्न किए होंगे, जो गुड्स हमने परचेज किया। अगर परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं तो गुड्स के प्लेस पे यूज द वर्ड परचेज रिटर्न। When the goods is returned to the supplier, then the goods is called purchase return, and in the place of goods we use the word purchase return. राम को गुड्स रिटर्न किए तो राम इज द रिसीवर, सो राम डेबिट टू क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना है 10,000। नरेशन बीइंग पहले ऑब्जेक्ट गुड्स फिर वर्ब, रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न टू राम, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। And last one is sales return. Sales return means when the sold goods is returned by the customer to the merchant, then the goods is called sales return, and in the place of goods we use the word sales return. For example, goods returned by Ram. Goods रिटर्न बाय राम। अभी पहले वाले में हम क्या कहते हैं, गुड्स रिटर्न टू राम, मतलब राम को हमने वापस किया, तो इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। और व्हेन गुड्स रिटर्न बाय राम देन इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, क्योंकि राम को गुड्स हमने सोल्ड किया होगा इसलिए राम उनको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो व्हेन द गुड्स इज रिटर्न बाय द कस्टमर इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। इन द प्लेस ऑफ गुड्स वी यूज द वर्ड सेल्स रिटर्न। तो हियर वी यूज सेल्स return account debit to Ram, rupees 10,000. Narration being goods returned by Ram. So these are the 4 types of goods account, and in the place of goods we use these 4 words. These are called purchase, sales, purchase return, sales return. Purchase means when the goods is purchased by the merchant, then this goods is called purchases, and in the place of goods we use the word purchases. Second, sales, when the goods is sold to the customer, then this goods is called sales, and in the place of goods we use the word sales. Purchase return, when the goods is returned by the merchant to the supplier, then this goods is called purchase return, and in the place of goods we use the word purchase return. And last one is sales return, when the goods is returned by the customer, then this goods is called sales return, and in the place of goods we use the word sales return. So these are the 4 parts of goods account: purchase, sales, purchase return and sales return. अब इसके बाद next thing which is known by us, this thing is capital. Capital क्या है? What is capital? Capital means at the time of starting the business,
at the time of commencement of the business, the money which is invested by the owner of the business in the business as a cash, assets or goods. The money or amount which is invested by the owner of the business in the business as a cash, goods or furniture or assets, this thing is called capital. So in the place of owner we use the word capital. For example, Ram started business with कैश रुपीस 1 लाख। राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 लाख रुपीस इज इन्वेस्टेड बाय द राम इन द बिजनेस। तो इन द प्लेस ऑफ राम वी यूज द वर्ड कैपिटल। 1 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस में क्या आया? व्हाट कम्स इन द बिजनेस? कैश। और ये कैश कौन दे रहा है? राम। Ram is the owner of the business. In the place of owner of the business, we use the word capital. मतलब ये कैपिटल किसने इन्वेस्ट किया? बिजनेस के ओनर ने। और ओनर की जगह पर, ओनर के नेम के प्लेस पे यूज द वर्ड कैपिटल, क्योंकि अकाउंट में जिसकी बुक्स में हम लोग एंट्री बनाते हैं उसका नाम यूज नहीं करते, बल्कि उसके प्लेस पर कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल इन्वेस्ट किसने किया? कैश किसने इन्वेस्ट किया? राम ने। So we cannot use the word Ram. Cash comes in and who is the giver? Ram. But Ram word cannot be used in the place of Ram. In the place of owner, we use the word capital. So at the time of starting the business, the money which is invested by the owner of the business in the business, that money is called capital. And in the place of capital, we use in the place of owner, we use the word capital. तो इसकी एंट्री क्या होगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, व्हाट कम्स इन द बिजनेस? कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट विल बी रुपीस 1 लाख एंड दिस 1 लाख रुपीस इज इन्वेस्टेड बाय द राम। इन द प्लेस ऑफ ओनर वी यूज द वर्ड कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल के राम के प्लेस पर हमने क्या यूज किया है? कैपिटल। नरेशन बीइंग business started with cash. This is कैपिटल के बारे में है। अब एक और चीज लास्ट, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स द कैश और गुड्स विच इज टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। The cash or goods which is taken by the proprietor from the business for his personal use. This cash or goods is called drawing. तो business से बिजनेस का ओनर, बिजनेस का प्रोप्राइटर अपने यूज के लिए बिजनेस से जो कैश और गुड्स विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, बिकॉज वी हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन in the books of account from the business point of view, not from the owner point of view. If the owner withdraw cash or goods from the business, then it is not called business expense. This is called the proprietor personal expense. It means business given cash or goods to the proprietor. बिजनेस से तो कैश और गुड्स जा रहा है, और ये कैश और गुड्स किसने लिया? प्रोप्राइटर ने। और प्रोप्राइटर की जगह पर हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ड्राइंग्स। तो इसी तरह हमने जब देखा था कि बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में कैश कौन इन्वेस्ट करता है? ओनर इन्वेस्ट करता है। ओनर की जगह पर हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल। तो जब बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट कैश करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और जब बिजनेस से कैश ओनर विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। फॉर एग्जांपल, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, या कैश टेकन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रू फॉर हाउस होल्ड पर्पज, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। रुपीज 1000 रुपया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए। तब ये बिजनेस से विड्रॉ किया, किसने विड्रॉ किया? ऑनर। ऑनर विड्रॉ कर रहा है तो ये नहीं समझेंगे बिजनेस में कैश आ रहा है, नो। बिजनेस से तो कैश जा रहा है, और ये कैश किसके पास आ रहा है? ऑनर के
पास। रिसीवर कौन हुआ? ऑनर, और बिजनेस से कैश क्या हुआ? गोज आउट। तो ऑनर के प्लेस पर हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्या गया बिजनेस से? कैश, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग कैश withdrew from business for being cash withdrew from business for personal। इस तरह से ट्रांजेक्शन्स को हम लोग अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तीन वर्ड्स, गुड्स, कैपिटल, ड्राइंग, हमको जानना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। गुड्स के बारे में लिखा कि एनीथिंग इन विच ए मर्चेंट डील्स, दैट थिंग इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स: परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कैपिटल। कैपिटल मीन्स द कैश और गुड्स which is invested by the owner of the business in the business at the time of starting the business is called capital। इसके बाद हमने देखा drawings, the cash or goods which is taken by the proprietor from the business for his personal use is called drawings। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों को अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते समय ध्यान में रखनी है। गुड्स, कैपिटल, ड्राइंग्स। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले भी क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था क्या? जर्नल। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which the transactions are recorded first of all and when they take place। जर्नल में जो होते हैं 5 कॉलम्स होते हैं: डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये 5 कॉलम हैं जर्नल के लिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो देयर आर 5 कॉलम्स यूज फॉर फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ये 5 कॉलम जो होते हैं वो इस तरह से हैं। पहला कॉलम जो बनाते हैं वो किस चीज का बनाते हैं? डेट का। इन दिस कॉलम वी रिकॉर्डेड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन की डेट को इसमें क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ईयर को एक बार रिकॉर्ड करते हैं और मंथ को एक बार रिकॉर्ड करते हैं, जब तक कि वो चेंज ना हो जाए। और जब ईयर चेंज होता है तो फिर हम लोग उसको चेंज करते हैं, अदरवाइज एक बार रिकॉर्ड कर दिए तो फिर वो चलते रहेगा। सेकेंड कॉलम that is called particulars। इस कॉलम में, in this column we recorded 3 things: first debit, second credit, फिर थर्ड नरेशन। डेबिट मतलब जो उस ट्रांजेक्शन से जो अकाउंट डेबिट होगा उसको पहले लिखेंगे, उस ट्रांजेक्शन से जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको बाद में लिखेंगे, और फिर नरेशन, क्लियरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। थर्ड कॉलम एलएफ। एलएफ मीन्स होता है लेजर फोलियो। इसमें पेज नंबर रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जब जर्नल से लेजर में एंट्री करनी हो तो हम आसानी से उस पेज पर जा सकें। और फोर्थ अमाउंट डेबिट। जो अकाउंट डेबिट होता है उसका अमाउंट इस कॉलम में, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसका अमाउंट इस कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो दीज आर द 5 कॉलम्स ऑफ जर्नल। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल बनाते समय इस फॉर्मेट को हमको ऑलवेज यूज करना है, चाहे हम लोग
कुछ भी पढ़ें शुरू से लेके लास्ट तक जर्नल का यही फॉर्मेट रहेगा। These are 5 columns used for preparing journal। इसको जानना अच्छे से जरूरी है। डेट, इस कॉलम में हम लोग डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें ईयर को एक बार, फिर मंथ, जब तक कि वो चेंज ना हो रिकॉर्ड हर डे का हर डे किया जाता है। पर्टिकुलर्स, इस कॉलम में उस अकाउंट को लिखा जाता है जो डेबिट क्रेडिट होता है, और फिर उसका नरेशन, ताकि क्लेरिफिकेशन हो सके या नरेशन को देख के भी हम समझ सके कि कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है। एलएफ, इसमें पेज नंबर या फोलियो नंबर लिखते हैं। इसका पूरा नाम जो होता है एलएफ का, उसको हम लोग कहते हैं लेजर फोलियो। एल मतलब लेजर और एफ का मतलब होता है फोलियो। लेजर फोलियो और पेज नंबर, ताकि जनरल से जब हम लेजर में पोस्टिंग करें तो उसके पेज नंबर को यहाँ पे लिख दिया जाता है, ताकि आसानी से उसको हम उस पेज तक जा सके। जैसे बुक्स में शुरुआत में इंडेक्स दिया रहता है, तो इंडेक्स के बेसिस पर हम किसी भी चैप्टर में आसानी से जा सकते हैं। उसी तरह जनरल से लेजर बनाने के लिए फोलियो नंबर और पेज नंबर लिखने से हम जनरल से लेजर में आसानी से पहुंच सकते हैं। अमाउंट डेबिट, इस कॉलम में उस अकाउंट को जिसको हम लोग डेबिट करते हैं उसका अमाउंट लिखते हैं। और अमाउंट क्रेडिट, इस कॉलम में उस अकाउंट को जिसको हम लोग क्रेडिट करते हैं उसका अमाउंट लिखते हैं। इन दिस वे दीज आर 5 कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर जनरल डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। हम लोग पहले दिन ही पढ़े थे कि अकाउंट में ऑलवेज फर्स्ट क्या करते हैं, हमेशा पहले किसको लिखते हैं, डेबिट को, फिर क्रेडिट को और फिर नरेशन। डेबिट के प्लेस पर डीआर और क्रेडिट के प्लेस पर टू, और नरेशन जो लिखते हैं वो क्लियरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया उसका क्लियरिफिकेशन क्या है। अब कैसे हम लोग जनरल को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग एक एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। There are 3 types of account, ये हम लोग पहले दिन ही पढ़ चुके थे कि accounts are classified into 2 parts, पर्सनल और इम्पर्सनल, और फिर इम्पर्सनल आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। इन शॉर्ट, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जैसे रेलवे टिकट में पीएनआर नंबर लिखा रहता है, उसी तरह से जनरल अकाउंटिंग के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, पीएनआर। पीएनआर का मतलब यहाँ पर पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल हमने बताया था कि पर्सनल अकाउंट जो होता है इट इज रिलेटेड विद कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बीइंग्स। और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट और गिवर को क्या किया जाता है, क्रेडिट। रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स और गेन्स, जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड क्रेडिट। एंड लास्ट अकाउंट इज दैट अकाउंट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से तो व्हाट आर द थिंग्स कम्स इन द बिजनेस डेबिट एंड व्हाट आर द थिंग्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिट। ये सीक्वेंस देंगे, सीक्वेंस तक हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल पढ़ते हैं, लेकिन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि पीएनआर मतलब पर्सनल, नॉमिनल, रियल। अब इसके बाद कैसे हमको अकाउंटिंग के बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग विदाउट फॉर्मेट बनाए कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फॉर्मेट ही नहीं बनाते हैं, तो जिससे हमारा आधा मार्क्स तो पहले ही चला गया, क्योंकि बिना फॉर्मेट के हमको कुछ भी मिलने वाला नंबर नहीं है। इसलिए अकाउंट में सबसे पहले जनरल एंट्री करने के लिए 5 कॉलम्स बनाना होगा, डेट इज कॉल्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल। चाहे वो रहे या ना रहे, लेकिन वो 5 कॉलम्स में हम कोई भी कॉलम मिसिंग नहीं कर सकते हैं। कहा वो क्वेश्चन में डेट नहीं तो डेट का कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, पेज नंबर नहीं है तो एलएफ का कॉलम बनाना जरूरी नहीं, लेकिन नहीं, पहले 5 कॉलम्स बनाएंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल पर्सनल अकाउंट से शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये है कैश पेड टू राम 5000 रुपीज, डेट यहाँ डाल देते हैं 2014 Jan 1, और दूसरा कैश received from Bipal rupees
ये 2 ट्रांजेक्शन हैं और इसको हम लोग को अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 कॉलम्स बनाएंगे। बिना कॉलम बनाए कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले 5 कॉलम्स बनाना है, तभी हमको आगे जाना है। These are the 5 columns for जनरल। पहला कॉलम डेट का, दूसरे कॉलम पर्टिकुलर्स, इसमें उस अकाउंट का नाम लिखते हैं जो डेबिट और क्रेडिट होता है। फिर LF लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको मैं फिर से बनाऊंगा अभी आगे। अमाउंट क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते क्या है, जर्नल एंट्रीज। तो ये 5 कॉलम्स ऑलवेज वी प्रिपेयर, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। मान लो ये जैन 1 था, इसकी डेट हम लोग मान लेते हैं जैन 2। तो सबसे पहले ईयर लिखेंगे, क्या है ईयर 2014। फिर जैन डेट क्या है, जनवरी 1। अब इसमें ये देखना है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। जो डेबिट होगा उसको पहले लिखेंगे और जो क्रेडिट होगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे कैश पेड टू राम, तो राम कौन हुआ, राम को कैश दिए तो राम इज द रिसीवर, और क्या बिजनेस से जा रहा है, कैश। रिसीवर को क्या करते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पर्सनल अकाउंट का लो, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। कैश गोज आउट, तो जो जाता है डेट इज, तो क्या करते हैं, क्रेडिट। व्हाट आर द थिंग्स कम्स इन द बिजनेस डेबिट एंड व्हाट आर द थिंग्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिट। अब कैश पेड टू राम, राम को कैश पेड किए तो राम कौन हुआ, रिसीवर हुआ, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, राम। पर्सन के नाम के आगे तो अकाउंट लगा नहीं सकते हैं, और अगर हमको लगाना तो इसके लिए पहले क्या यूज करना होगा, एपोस्ट्रोफी एस यूज करना होगा, या ऐसे भी केवल चल सकते हैं राम डेबिट, या फिर अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट। दोनों सही है, ये राम डेबिट या राम्स अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस से गया क्या, अमाउंट कितना है 5000, ये डेबिट हुआ है, राम्स अकाउंट डेबिट, राम डेबिट है तो इसका अमाउंट जो हम लोग लिखेंगे किस कॉलम में लिखेंगे, डेबिट में। जो डेबिट होता है उसका अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, और जो क्रेडिट होता है उसका अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखते हैं। अब बिजनेस से गया क्या, कैश, तो 4th लेटर से टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट हम लोग, इसका अमाउंट ये क्रेडिट है तो इसका अमाउंट हम लोग डेबिट वाले कॉलम में ना लिखे, किस कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। जो डेबिट होता है उसका अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, और जो क्रेडिट होता है उसका अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखते हैं। तो राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अल्टरेशन बीइंग, पहले ऑब्जेक्ट कैश, फिर वर्ब पेड, फिर टू राम। एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, पर्टिकुलर से पर्टिकुलर तक लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने का मतलब हुआ कि वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, अब उसमें हमको कुछ भी नहीं लिखना है। अब दूसरा, फिर 5 कॉलम बनाएंगे, वही 5 कॉलम तो हर ट्रांजेक्शन के लिए बनाना है बनाना। बिना 5 कॉलम बनाए हम लोग कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये वही 5 कॉलम्स, इसमें भी वही चीज लिखना है जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था। डेट एक साथ ही बना देंगे, लेकिन मेरा चूंकि हमको समझाना है इसलिए मैं बार बार अलग अलग बना रहा हूँ, लेकिन कॉपी में एक साथ ही हम लोग क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींच करके इसको बना लेंगे और बार बार ट्रांजेक्शन को उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते रहेंगे। बार बार कॉलम खींचने की जरूरत नहीं, हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग कॉलम नहीं बनाते, उनकी कॉलम एक साथ बना लेते हैं और फिर इसमें ट्रांजेक्शन को बारी बारी उसके एक के नीचे एक को रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है वो जनरल एंट्रीज का है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक तो हमने बता दिया, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो क्या था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बीमल। बीमल से कैश रिसीव्ड हुआ तो हमारे पास क्या आया, पहले तो ईयर लिखना एक ही बार वहां लिख दिए थे, खाली डेट लिखेंगे उसमें भी ऐसे करके क्या लिख दे, 2 मतलब जैन 2। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम बीमल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बीमल में हमारे पास क्या आया, कैश, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। चौथे लेटर से क्या लिखेंगे, टू बीमल। कितना अमाउंट है 3000, तो एक बार 3000 को डेबिट में लिखेंगे और एक बार 3000 को क्रेडिट में लिखेंगे।
फिर इसके नीचे नरेशन बीइंग कैश received from given। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये दो एग्जाम्पल हमने जो देखा वो पर्सनल अकाउंट का था। अब दूसरे एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो है वो रियल अकाउंट्स के हैं। रियल अकाउंट मीन्स द अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड विद एसेट्स ऑफ द बिजनेस और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। मान लो ईयर है 2014, Jan 1st, परचेज गुड्स और कैश रुपीज 5000। अब इसमें एक चीज हम अभी आपको ये देखना होगा, ये तीन चीजें हैं, परचेज गुड्स रुपीज 10,000, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय रुपीज 5000, और चौथा है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय और कैश रुपीज 6000। अब ये चार ट्रांजेक्शंस हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय फॉर कैश। अब हाउ कैन वी नो दिस ट्रांजेक्शन इज मेड इन कैश और ऑन क्रेडिट। जैसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब ये ट्रांजेक्शन जो हुआ वो किस में हुआ है, कैश में। व्हाट कम्स इन द बिजनेस, गुड्स। व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश। गुड्स आया तो गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश गया तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेकेंड, परचेज गुड्स। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि कैश में है कि क्रेडिट में, तो भी इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैश में मानेंगे। इसमें भी क्या मानेंगे, गुड्स आया, गुड्स को डेबिट, कैश गया, कैश को क्रेडिट। अब थर्ड ट्रांजेक्शन जो है, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, अजय से गुड्स परचेज किए। अब इसमें कैश वर्ड यूज नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स दिस गुड्स इज परचेज फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। ये गुड्स हमने अजय से क्रेडिट में खरीदा। अगर गुड्स को क्रेडिट में खरीदे तो डेबिट किसको करेंगे, गुड्स को, और क्रेडिट किसको करेंगे, अजय को। और चौथा, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय फॉर कैश। अब इसमें दोनों दिया हुआ है, अजय भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये गुड्स हमने क्रेडिट में नहीं खरीदा। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश आ गया, कैश वर्ड दिया हुआ है, दैट मींस दिस ट्रांजेक्शन इज मेड इन कैश। इसमें भी गुड्स आया और कैश गया, गुड्स आया तो गुड्स को डेबिट करेंगे, कैश गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अजय से कोई मतलब नहीं रहेगा। नेम अगर दिया हुआ तो ये नहीं कि वो गुड्स ट्रांजेक्शन हमने क्रेडिट में किया है। नेम दिया हुआ है, केवल नेम दिया हुआ तब वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में, और नेम के साथ अगर कैश भी दिया हुआ, दैट मींस दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट मेड ऑन क्रेडिट, दिस ट्रांजेक्शन मेड इन कैश। तो ये चार ट्रांजेक्शन है, इस चारों में हमने अलग अलग देखा कि इसमें गुड्स आया और कैश गया, दूसरे में केवल गुड्स दिया, कैश नहीं दिया, तो हम ये मान लेंगे कि दिस ट्रांजेक्शन इज डन इन कैश। और तीसरे में परचेज गुड्स फ्रॉम अजय है, तो इसमें गुड्स तो आया लेकिन ये नहीं दिया कि ये ट्रांजेक्शन हमने कैश में किया, दैट मींस दिस ट्रांजेक्शन इज मेड इन ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट में किया, जिस पर्सन से गुड्स क्रेडिट में खरीदे उस पर्सन का नाम लिखेंगे। और चौथा, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय फॉर कैश, गुड्स से अजय से कैश में खरीदे तो गुड्स आया और कैश गया। अब कैसे इन चारों ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग की बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ये हम लोग आगे देखते हैं। इसके लिए भाई सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर 5 columns. This 5 column is called the format of the journal. In the first column we write date of transaction. In the second column we write particulars, then all of 4 amount debit and amount credit. These are the 5 columns of journal. First column में क्या लिखना है, date. second column में particulars. थर्ड कॉलम में
कॉलम में अमाउंट डेबिट और फिफ्थ कॉलम में अमाउंट क्रेडिट, और इसको हम लोग कहते क्या है, जर्नल एंट्रीज। तो हमने देखा सबसे पहला क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में खरीदे तो बिजनेस में गुड्स आया और कैश गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ईयर कौन सा था, 2024, डेट कौन सी है, Jan 1। अब क्या आया बिजनेस में, परचेज गुड्स फॉर कैश है, तो हमने देखा क्या बिजनेस में आ रहा है, गुड्स। क्या बिजनेस से जा रहा है, कैश। गुड्स आया तो गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट। और अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि गुड्स जब परचेज करते हैं तो गुड्स के प्लेस पर क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेजेज। तो क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट। और डेबिट कहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे कॉलम पर्टिकुलर्स का खत्म होता है। पर्टिकुलर से शुरू करते हैं और डेबिट वहां पे लिखते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम खत्म हो रहा है। परचेज अकाउंट ये कहीं पर भी नहीं लिख सकते हैं, ये वहां पे लिखना चाहिए जहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम खत्म हो रहा है। अब ये डेबिट हुआ है तो इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट जो लिखेंगे हम लोग किसमें लिखेंगे, डेबिट में। कितना अमाउंट है, 5000। अब फोर्थ लेटर से थर्ड को छोड़ करके टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट है तो इसका अमाउंट किसमें लिखेंगे, क्रेडिट में। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। डेबिट इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट। ये अकाउंट का रूल है, जो आया वही गया होगा। इसलिए डेबिट हमेशा किसके बराबर होता है, क्रेडिट के, या क्रेडिट हमेशा किसके बराबर होता है, डेबिट पे। और हर सर्कमस्टेंसेस में ये रूल अप्लाई होता है। अब इसके बाद नरेशन, सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, फिर बीइंग, ऑब्जेक्ट क्या इसमें है, गुड्स, वर्ब क्या है, परचेज्ड, और रिमेनिंग मैटर क्या बच गया, और कैश। फिर यहां से यहां तक पर्टिकुलर से पर्टिकुलर, पूरे में कॉलम नहीं खींचना है। कॉलम जो खींचते हैं, लाइन जो नीचे हम लोग खींचेंगे वो पर्टिकुलर से शुरू करेंगे और उसको पर्टिकुलर पे ही खत्म कर देंगे। मतलब ये एक ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ट्रांजेक्शन इसी डेट को था, परचेज गुड्स। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन जो हमने किया वो किसमें किया है, कैश में किया। डेट वही Jan 1, परचेज गुड्स है, इसका मतलब यही एंट्री सेम बनेगी। कुछ नहीं दिया मतलब परचेज गुड्स फॉर कैश, तो नरेशन भी वही होगा, सब कुछ वही। क्या लिख देंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000। एक बार डेबिट में ये परचेज और ये क्रेडिट है, इसका अमाउंट क्रेडिट में। फिर नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड और कैश। अब इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन जो है, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अजय से गुड्स परचेज किए, इसका मतलब ये गुड्स जो हमने खरीदा वो किसमें खरीदा है, कुछ नहीं दिया हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ है, नाम दिया हुआ है। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन को देख करके हम ये अंडरस्टूड कर जाएंगे ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो किसमें हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। और अगर क्रेडिट में है, ये 5 कॉलम से हमने वही बना दिया, डेट पर्टिकुलर दे रहा है, फिर उसमें लिखना होगा हमको पहले वाले कॉलम में डेट, दूसरे वाले कॉलम में पर्टिकुलर्स, तीसरे वाले कॉलम में LF, फिर अमाउंट डेबिट और फिर अमाउंट क्रेडिट। ट्रांजेक्शन क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अजय से गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदा तो क्या हमारे पास आया, गुड्स। गुड्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेट वही है Jan 1, परचेज गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स को क्या करते हैं, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है इस ट्रांजेक्शन का, 5000। तो यहाँ पे हम लोग ये अमाउंट लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5000। चौथे लेटर से क्या लिखेंगे, टू, गिवर कौन है इसमें, आगे से कर दें,
गिवर कौन होगा, अजय। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, इसलिए ये भी सही है। और हम चाहें तो क्या दे सकते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के अकाउंट लगा सकते हैं। अजय क्रेडिट में, तो इसका अमाउंट हम लोग किस कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट में। इसके बाद इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड, थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब का लिखते हैं, फ्रॉम अजय। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग लाइन खींच देंगे। पर्टिकुलर से पूरे में लाइन नहीं होना चाहिए, ये लाइन हमेशा पर्टिकुलर से शुरू होगी और पर्टिकुलर्स पे ही खत्म होगी। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। जल्दीबाजी में लाइन पूरे में बच्चे खींच देते हैं, जो गलत है। लास्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय फॉर कैश। अजय से गुड्स हमने कैश में खरीदा, तो इसका मतलब गुड्स आया और कैश गया। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो पहले की तरह ही जो हमने फर्स्ट एंट्री में बनाया था। डेट वही है, जैन फर्स्ट। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, और डेबिट सबसे लास्ट में लिखेंगे जहाँ पे कॉलम खत्म हो रहा है पर्टिकुलर्स का। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर भी नहीं लिखना है। डेबिट हमेशा वहां पे लिखते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम खत्म होने वाला था, उसके पहले हम डेबिट को यूज करते हैं। कितना अमाउंट है, 6000। तो ये डेबिट है, तो इसका अमाउंट किस में लिखेंगे, डेबिट में। कितना अमाउंट लिखेंगे, 6000। और फोर्थ लेटर से, थर्ड को छोड़ करके फोर्थ लेटर से क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ये क्रेडिट है, तो इसका अमाउंट किस कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट में। और फिर इसके नीचे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय और कैश। फिर यहाँ से यहाँ तक पर्टिकुलर से लेके पर्टिकुलर तक लाइन खींचते हैं। तो ये तरीका है जर्नल को अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करने का। सबसे पहले हमेशा बार बार ये चीज़ें हम बता रहे हैं, आपको समझना होगा कि ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा पहले किसको लिखा जाता है, डेबिट को लिखते हैं। क्या, परचेज अकाउंट। और डेबिट कहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पर पर्टिकुलर्स का कॉलम कंप्लीट होने वाला होता है। फिर उसके नीचे क्रेडिट को थर्ड लेटर को छोड़ करके, लेटर 1 2 3 को छोड़ करके फोर्थ लेटर से क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं। और फिर ब्रैकेट में क्या करते हैं, नरेशन को लिखते हैं। जो अकाउंट डेबिट होता है उसका अमाउंट डेबिट में लिखते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसका अमाउंट हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। इस तरह से, और जब एक ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है तो पर्टिकुलर से लेके पर्टिकुलर तक लाइन खींच देते हैं। ये आपको जनरल बनाने का रूल है। और इसको हम देखेंगे तो कभी भी जनरल हमारा गलत नहीं होगा, हमको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले आपको एनालिसिस करना है कि ये डेबिट होगा कि ये क्रेडिट होगा, और डेबिट होगा तो क्यों डेबिट होगा और क्यों क्रेडिट होगा। क्योंकि अकाउंट केवल दो ही वर्ड्स पे चलता है, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। अगर आप अंदाज से बोलेंगे हाँ ये डेबिट हो गया, हम कहें गलत है, हाँ ये क्रेडिट होगा, तो ये नहीं है। अगर हम रूल को फॉलो करेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। सड़क के किनारे चलना है तो एक्सीडेंट जाहिर सी बात है, हमारी गलती नहीं होगी तो नहीं होगा, दूसरे की गलती से हो सकता है। और उसी तरह से अगर हम अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे तो कभी भी हमारा जनरल रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन जब सड़क के बीचों बीच हम चलते हैं तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा। तो उसी तरह से जब हम अकाउंट के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो अकाउंट भाई गलत तो होगा ही। अगर 2 + 2 हमको नहीं मालूम है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, जो मना है वो लिख सकते हैं। लेकिन जब हमको पता है कि 2 में 2 को प्लस करना है तो 4 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी तरह से अगर वी फॉलो द रूल्स ऑफ अकाउंट तो कभी भी किसी भी सूरत में गलती होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। Only know the rules of account। और बहुत ज़्यादा, बहुत 10-20 पेज 100 पेज का रूल नहीं है, केवल 3 रूल्स है, वो भी 2-2 लाइन के। ये 3 रूल्स अगर हम जान गए तो अकाउंट में हमेशा हम सब कुछ जानेंगे, कभी भी गलती होगी नहीं। जो लोग की गलतियाँ होती है, जिनसे भी गलतियाँ होती है, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ अकाउंट, वे अंदाज से डेबिट और क्रेडिट लिखने का कोशिश करते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, किसी भी क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, कि वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है, कि वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। अगर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो कौन सा रूल अप्लाएंगे, रिसीवर
डेबिट और गिवर क्रेडिट। रिसीवर का मतलब जिस पर्सन को हम कुछ देंगे या जिस पर्सन को बिजनेस कुछ देता है उसको रिसीवर कहते हैं, और जिस पर्सन से बिजनेस कुछ लेता है उसको गिवर कहते हैं। दूसरा रूल जो अप्लाई करते हैं वो किसके लिए रूल करते हैं, अप्लाई करते हैं रियल अकाउंट के लिए। और रियल अकाउंट क्या कहता है कि व्हाट आर द थिंग्स कम्स इन द बिजनेस, जो चीज बिजनेस में आती है उसको डेबिट करते हैं, या जो एसेट बिजनेस में आती है उसको डेबिट करते हैं, और जो एसेट बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो रियल अकाउंट को देखने के लिए हमको ये देखना होगा कि वो एसेट से रिलेटेड अगर है, वो चीज अगर एसेट्स है तो एसेट्स है तो ये देखेंगे जैसे वो पर्सनल अकाउंट में वो पर्सन, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। अगर वो क्वेश्चन एसेट से रिलेटेड है तो उसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। रियल अकाउंट से व्हाट आर द थिंग्स और व्हाट आर द एसेट्स कम्स इन द बिजनेस विल बी डेबिट, एंड व्हाट आर द थिंग्स और व्हाट आर द एसेट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस क्रेडिट। और तीसरा अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये कहता है, ये नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो हम लोग देखेंगे कि इट इज एक्सपेंसेस और लॉसेस, और इट इज आइदर इनकम्स और गेन्स। अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस है तो उसको डेबिट करेंगे, इनकम्स और गेन्स है तो उसको क्रेडिट करेंगे। बस ऑल द अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन these three things: company, firm, organization, human being, that is called personal account, receiver, debit, giver, credit. Real account is related with assets of the business. What are the things comes in the business debit, and what are the things goes out from business credit. And nominal account, the account which are related with expenses or losses, incomes or gains are called nominal account. Nominal account say all expenses and losses debit, and all incomes and gains credit. If we know these rules, that means we solve every question in the account, we know everything in the account, never mistake. But we don't know these rules, then there is always possibility of mistakes. Thank you for today. फिर मिलेंगे कल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो और डाल सकें। आपका लाइक सब्सक्राइब भी मेरे हौसले को बढ़ाता है, जिससे मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।